Ignited Minds Tutorials is an online platform dedicated to providing educational resources for students. Recently, they have uploaded a series of videos on the topic of federalism for Class X CBSE SST. Federalism is a crucial concept in the field of social sciences, focusing on the division of power between central and regional governments. These videos aim to provide a comprehensive understanding of this topic to the students. In these videos, the experts at Ignited Minds Tutorials explain the basic principles of federalism, such as the importance of a written constitution and the presence of two levels of government. They also discuss the advantages of federalism, including effective governance and protection of minority rights. Additionally, the videos shed light on how federalism works in the Indian context, highlighting the roles and responsibilities of the central government and the state governments. The tutorials provide in-depth knowledge through clear explanations, diagrams, and examples. The students can learn about different types of federalism, such as dual federalism and cooperative federalism. They also explore the challenges and debates associated with federalism, such as the issues of taxation and resource sharing. With these videos, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the minds of Class X CBSE SST students, helping them grasp the intricacies of federalism through engaging and informative content. These resources will undoubtedly enhance their understanding and pave the way for academic success. Okay, so बच्चाबाजी कल हमने देखा कि there is a group of countries which believe in holding together and coming together. तो दो टाइप के आपके फेडरेशंस फॉर्म हो सकते हैं. One is basically coming together federation and the other one is holding together federation. ठीक है? So there is a group coming together and there is a group holding together. The constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers. क्या क्या है भाई साहब? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आपका भाई साहब लेजिस्लेटिव पावर्स डिफाइंड हैं पूरे. आपके दायरे क्या हैं, आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, आप किन चीज़ों पे काम करेंगे, आपके पावर्स क्या क्या हैं, आपकी अथॉरिटी क्या क्या है, ये सब बाकायदा डिफाइंड है. ठीक है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में किसके किसके, यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पे है और स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पे. ठीक है, ओके. सो एक हो गया भाई साहब आपका यूनियन लिस्ट. ठीक है, फिर हो गया आपका स्टेट लिस्ट और एक हो गया आपका कॉन्करेंट लिस्ट. अब इस चीज़ को समझिए. यूनियन लिस्ट बेसिकली विल टॉक अबाउट दोज departments which could be handled directly by the union government or central government. ठीक है, स्टेट लिस्ट बेसिकली वो लिस्ट है जो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जिन चीज़ों पे अपना पावर एक्सरसाइज कर सकता है या चेंजेस ला सकता है. और फाइनली कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? दोनों का कॉम्बिनेशन आपका कॉन्करेंट लिस्ट हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो दिस इज हाउ इट इज. यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, करेंसी. इन सब चीज़ों पे कोई भी स्टेट और ना ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस कर सकता है. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी. ठीक है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी, इन सब पे सिर्फ स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट है. दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री. तो दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी. एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत है ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री. द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट. ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट ही सिर्फ लॉज बना सकती है रिलेटिंग टू सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट. तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में वो यूनियन गवर्नमेंट ही उसमें लॉज बना सकती है. स्टेट लिस्ट contains subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. ये स्टेट लिस्ट के हैं भाई साहब. ठीक है, तो पुलिस स्टेट कंट्रोल्ड होती है. ठीक है, ट्रेड जो बिजनेस होता है वो स्टेट कंट्रोल होता है. कॉमर्स ये स्टेट कंट्रोल होता है. एग्रीकल्चर, इरिगेशन ये सब स्टेट कंट्रोल्ड चीज़ें हैं. इस पे यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी. ठीक है, सो दीज आर स्टेट कंट्रोल्ड थिंग्स. ओके, सो आपका जैसे अगर आप देखोगे महाराष्ट्र पुलिस में ज़्यादा करके महाराष्ट्रियंस का नियुक्ति होता है जो मराठी बोल पाते हैं. ठीक है, बिकॉज इट्स अ स्टेट पॉलिसी. ये स्टेट डोमिनेंस है यहाँ पे. ठीक है, ओके. सो पुलिस हो गया भाई साहब, ट्रेड हो गया. ठीक है, व्हाट एल्स, कॉमर्स, देन वी हैव एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सब पे स्टेट कंट्रोल है. सो दिस इज बेसिकली स्टेट लिस्ट टॉपिक्स.
द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं या जो आपके लिस्ट में हैं उस पर कार्य करनी जो है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है भाई साहब? इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के जो कॉमन इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स हैं वो इसमें हैं, जैसे एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये भाई साहब ये स्टेट। और तो देखो जैसे एजुकेशन, जैसे आप बोलोगे भाई साहब मैं CBSE से हूँ, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ तो ये कौन सा लिस्ट आ गया भाई साहब? आपके यूनियन में आ गया ये, ठीक है। और कोई समझ लो स्टेट बोर्ड से है, ठीक है। अभी इस चीज़ को समझो कि मैं अगर स्टेट बोर्ड में हूँ तो मुझे भी 10th पास का सर्टिफिकेट मिलेगा, और मैं अगर CBSE में हूँ तो मुझे भी 10th पास का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये दोनों स्टूडेंट जो अलग अलग बोर्ड से आ रहे हैं, आर दे एक्सपेक्टेड टू नो द कॉमन थिंग्स दैट यू शुड बी नोइंग आफ्टर 10 years ऑफ एजुकेशन? तो क्या स्टेट बोर्ड अपना ही कुछ कार्यक्रम चला सकता है? नहीं। तो जितने भी आपके स्टेट बोर्ड्स होंगे, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे वेस्ट बंगाल का हो, चाहे कर्नाटका का हो, चाहे उड़ीसा का हो, उसका अलाइनमेंट CBSE के साथ होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं NCERT, वैसे आप बोलते हैं SCERT। अक्सर तुम अगर स्टेट बोर्ड की बुक उठाओगे उसमें जो मैथ्स, साइंस, इन सब में तुमको जो सवाल मिलेंगे वो कॉमन सवाल हैं, ठीक है। तो स्टेट बोर्ड को आपके सेंट्रल बोर्ड को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टेट बोर्ड भी अपना कुछ दावा रख सकता है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट में ये अभी मतलब लीगल हो गया है कि आपको मराठी लेना ही पड़ेगा अनिवार्य रूप से, ठीक है। चाहे आप CBSE में हो, चाहे स्टेट बोर्ड में हो, यू हैव टू टेक मराठी एज अ सब्जेक्ट। इसी तरह से दूसरे स्टेट्स में भी हैं, क्योंकि लिंग्विस्टिक डिवीजन हुआ है भाई साहब हमारा, तो इनका और इनका दोनों में आपसी तालमेल से ये चलेगा। दैट इज द रीजन दिस इज नोन एज अ कॉन्करेंट लिस्ट। एजुकेशन जो है आपका कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब MBBS की पढ़ाई अगर आप कर रहे होंगे महाराष्ट्र के किसी कॉलेज में तो वो एकदम अलग होगा, आप भाई साहब गुजरात में कर रहे होंगे तो वो अलग होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इट हैज़ टू बी अ यूनिफॉर्म मेथड ऑफ एजुकेशन। तो अब आप बोल सके कि भाई साहब इंडिया में अगर किसी ने 10th तक की पढ़ाई की है या 12th तक की पढ़ाई वाकई में की है तो उसको ये सब नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल अक्रॉस, एक यूनिफॉर्मिटी। फॉरेस्ट आपका भाई साहब एक यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कॉमन टॉपिक है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है जैसे समझ लो कोई एक स्टेट है और उसमें कोई फॉरेस्ट एरिया आता है। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस पूरे फॉरेस्ट एरिया को हम काट कर भाई साहब यहाँ पे बिल्डिंग्स बना देंगे, ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। फॉरेस्ट एरिया अगर डिक्लेयर हुआ है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा कन्विंस करना पड़ेगा, पूरा स्ट्रैटेजी बताना पड़ेगा कि कैसे आप जो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस को कर रहे हैं उसकी जवाबदारी कैसे लेंगे, क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट हो गया भाई साहब। जैसे अगर आप देखोगे मुंबई के बीचों बीच संजय गांधी नेशनल पार्क है जो बोरीवली के थोड़ा आगे है, और वहाँ पे एक कॉलोनी है जिसको हम आर्य फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, आर्य फॉरेस्ट बोलेंगे। ये आर्य फॉरेस्ट, ये आर्य मिल्क कॉलोनी बोलते हैं उसको हम। आर्य मिल्क आपने देखा रहेगा, ठीक है, दूध का पैकेट आता है, एक्चुअली वहाँ पे लोकेटेड है। तो ये बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट एरिया है आर्य मिल्क कॉलोनी, और वो एकदम मुंबई के बीचों बीच है। बहुत सालों से बिल्डर्स और जितने भी बड़े बड़े हैं इंडस्ट्रियलिस्ट वो ट्राई कर रहे हैं कि लेट्स एक्वायर दिस प्लॉट ऑफ लैंड एंड वी विल डू बिजनेस आउट हियर। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ सकती है वहाँ पे, बहुत कुछ निर्माण हो सकता है, और वो मुंबई के एकदम बीचों बीच है। मतलब बहुत सालों से ये चल रहा है लेकिन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, नहीं कर सकते, क्योंकि उसको बोला जाता है आर्य मिल्क कॉलोनी इज रिगार्डेड एज द ऑक्सीजन ऑफ मुंबई, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लायर ऑफ मुंबई ऐसा माना जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। फॉरेस्ट हो गया भाई साहब। ट्रेड यूनियंस होते हैं, देखो ट्रेड यूनियंस जो होंगे, जैसे APMC एक ट्रेड यूनियन है, ठीक है, हमारा जो APMC का सेंटर है वो एक ट्रेड यूनियन है। तो ये बोथ ऑन अ स्टेट एंड नेशनल लेवल पे भी है। APMC के सेंटर्स जो हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, वो महाराष्ट्र के बाहर भी हैं, ऑल ओवर इंडिया हैं, ठीक है। मैरिज भाई साहब आपका कॉन्करेंट लिस्ट क्यों है? क्योंकि मैरिज जो है हो सकता है आप स्टेट के हिसाब से, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं किसी के मैरिज में जा रहा हूं, महाराष्ट्रियंस आर गेटिंग मैरिड, तो ऑब्वियसली जो आपका समारोह होगा वो मराठी समारोह होगा, है ना। कोई बंगाली की शादी हो रही होगी तो भाई बंगाली समारोह से शादी हो रही होगी। लेकिन शादी के बाद जो या शादी के टाइम पे जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो अप्लाई होंगे एज पर हिंदू मैरिज एक्ट,
ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट एक महाराष्ट्रियन कपल पे भी एप्लीकेबल होगा, एक बंगाली कपल पे भी एप्लीकेबल होगा, एक उड़ियन कपल पे भी एप्लीकेबल होगा, सब पे होगा। भले ही शादियों की जो रस्मों रिवाज हैं वो अलग तरीके से की गई हों, ठीक है, लेकिन जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो सब पे एप्लीकेबल होगा। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं। जैसे पहली पॉलिसी ये है कि अगर इन केस द कपल आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर देन दे कैन सीक अ डिवोर्स, बट दिस डिवोर्स हैज़ टू बी, तो 1 साल उनको साथ में रहना पड़ेगा और काउंसलिंग सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे। तो ये काउंसलिंग सेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये सब पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली एप्लीकेबल टू एवरीवन। तो आप देखोगे भाई साहब आपका जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो तो भाई साहब क्या है, आपके इसमें आ रहा है, कंट्री के लिस्ट में आ रहा है, ठीक है। और आपका जो रीति रिवाजों से आपने शादी की है वो स्टेट लिस्ट में आ रहा है, ठीक है। सो ये हो गया मैरिज। एडॉप्शन आप ऐसे ही किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, किसी अनाथालय में गए और किसी को लेकर आ गए, दिस इज नॉट द वे यू डू इट, ठीक है। एडॉप्शन में जो लॉज लगते हैं वो नेशनल लॉज हैं, ठीक है। सो अडॉप्शन मतलब आप समझ लीजिए कोई अनाथालय चला रहे हैं जो स्टेट के अंडर है, तो वहाँ पे स्टेट की पॉलिसीज लगेंगी। लेकिन अगर उस अनाथालय से कोई बच्चे को कोई अडॉप्ट करने आया है तो वहाँ पे वाकई में नेशनल लॉज की एप्लीकेबिलिटी होगी, ठीक है। सक्सेशन मतलब क्या होता है कि विरासत में जो आपको प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है, जैसे मेरे पापा की प्रॉपर्टी मुझे मिल रही है या मेरे प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को मिलेगी, ये जो सक्सेशन है ये कौन डिसाइड करेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय बोथ स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये भी भाई साहब आपके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है, ओके। ऑलराइट, सो आपके ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है दिस आर ऑल डिसाइडेड बाय बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द लिस्ट। If their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. तो भाई साहब अगर कॉन्फ्लिक्ट में आता है, हो सकता है स्टेट बोल रहा है नहीं 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 इस लॉ में हम इसको नहीं मान सकते ये, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल करेगा। इसका रीज़न बता सकते हैं? अगर समझ लो एक ही टॉपिक पे विवाद हो रहा है, देयर इज अ डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट, तो लॉ ये बोल रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव भी रखा जाएगा और लॉ को यूनियन गवर्नमेंट के हिसाब से ही माना जाएगा। इसका रीज़न क्या होगा? व्हाट कुड बी द रीज़न? किस लिए पावर है ज़्यादा? कैसे बोल सकते हैं आप उनके पास ज़्यादा पावर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को उसने पावर नहीं दिया है। व्हाट कुड बी द रीज़न? सोचने का तो अलग बात है, और क्या हो सकता है बताइए? व्हाट कुड बी द रीज़न? नहीं, ये एग्जैक्ट रीज़न नहीं है। ये रीजंस हो सकते हैं, बट व्हाट कुड बी द एग्जैक्ट रीज़न? आप डेमोक्रेसी में हैं, डेमोक्रेसी का पहला स्टेप क्या है? हाँ, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट फॉर्म होगी, राइट। ये गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी? हाँ, प्रीपेड पीपल नहीं, गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होगी? मैं बोल रहा हूँ किस प्रोसेस? वोट, इलेक्शन, ओके। सेंटर पे जो गवर्नमेंट आई है उसको ज़्यादा वोट्स मिले हैं या स्टेट पे जो गवर्नमेंट आई है उसको ज़्यादा वोट्स मिले हैं? सेंटर पे। तो मतलब आप बोल सकते हैं भाई साहब सेंटर को जो इलेक्ट किया, जिस पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इलेक्ट किया है, और स्टेट को जो इलेक्ट किया वहाँ पे सिर्फ स्टेट के लोगों ने इलेक्ट किया है। सो ऑब्वियसली पावर किसका ज़्यादा हुआ? पावर मतलब किसके साथ ज़्यादा लोग अलाइंड है? ऑब्वियसली द एंटायर कंट्री इज अलाइंड विद द यूनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स द रीजन यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल हो जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, तो आपके अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। रेजिडुअल मतलब जो देखो जब आप भाई साहब कोई चीज़ बनाते हैं जो बच जाता है, ठीक है, चलो ये आपके भाई साहब हो गए यूनियन गवर्नमेंट की लिस्ट, ये हो गई भाई साहब आपकी स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट, और एक हो गया भाई साहब दोनों का मिला जुला कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अभी कुछ ऐसे बच जाते हैं जो मतलब ना स्टेट में आ रहे हैं और ना ही भाई साहब, तो इनको अपन क्या बोलते हैं? रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो इस पे कौन करेगा भाई साहब? यूनियन गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करेगा। यूनियन गवर्नमेंट विल हैव द रेजिड्यूरी लिस्ट। What about the subjects that do not fall in any of the three lists? So what are the three lists? Union list, state list and concurrent list, ठीक है। Okay, so if any of the things are not falling in any of these lists,
then it comes into the residuary list. Subjects like computer software that came up after the constitution was made. अभी वैसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था आई एम सॉरी, तब भाई साहब था, तब भाई साहब साइबर क्राइम नहीं था, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं था तभी, तो इसके लिए तो कोई प्रोविजन ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया है तब कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया स्टेट में, कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया भाई साहब यूनियन में, और कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया कॉन्करेंट में। लेकिन जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन हो रहा है वैसे वैसे चीज़ें बढ़ रही हैं। अभी जैसे इंटरनेट हो गया है, इतने सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, तब हम कैसे मैनेज करेंगे। अभी जैसे एक शायद मूवी या सीरीज़ रिलीज़ हुई है जाम तारा बोल के, नेटफ्लिक्स में है या अमेजन में, कहीं पे भी है, लेकिन उसमें ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, आपको ऐसा कॉल आएगा, हेलो हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, ये आपका जो है तो कार्ड फ्रीज़ हो गया है, तो ज़रा फटाफट से अपडेट करा देंगे, आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्ड है आपका वो फ्रीज़ हो गया है। तो आप बोलेंगे फ्रीज़ क्यों हो गया भाई साहब, पहले तो उससे आप लड़ लेंगे, है ना। बोले गाड़ी टेक्निकल इश्यूज़ थे, हम सारे अकाउंट्स को अपग्रेड कर रहे थे तो फ्रीज़ हो गया है। तो आपका आधार कार्ड का लास्ट नंबर यही है, आधार कार्ड कहीं से भी मिल जाता है, ठीक है, आधार कार्ड का लास्ट 4 नंबर ये, हाँ यही, ठीक है, ओके ज़रा जल्दी बताएंगे कार्ड नंबर क्या है, ओके ये CV में। आप भाई साहब फंसते चले जाएंगे, एक एक डिस्क्लोजर करते जाएंगे, फाइनली OTP पे आएंगे, वो भी शायद बहुत लोग दे देते हैं जल्दी गाई में, और आपका बैंक अकाउंट साफ़ हो जाएगा। तो बिहार में बैठा हुआ कोई इंसान आपका बैंक मुंबई में साफ़ कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो इसको अपन कैसे हैंडल करेंगे। अब आप बोलोगे ये तो हमारे स्टेट में नहीं है, वो तो उधर लोकेटेड है, ठीक है। सो ये सारे कुछ रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। तो बिहार में ये क्राइम हुआ है, ठीक है, तो यहाँ की पुलिस को कैसे वहाँ पे लेना है, क्योंकि देखो पुलिस की जुरिस्डिक्शन होती है, ठीक है। आप अगर देखोगे इस एरिया से ये बाउंड्री है पुणे पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच में, तो कभी कभी बोलते हैं मुंबई पुलिस वाले नहीं। मैं उस दिन मतलब हमारे कुछ कैंपेन्स थे, तो पुलिस स्टेशन ऐसे गया हुआ था, हमारे बिल्डिंग के सोसाइटी के कुछ कंप्लेंट्स थे, काफ़ी मतलब पार्किंग होती है जिसके लिए गाड़ी आने जाने का वो नहीं था, तो ऐसे कंप्लेन करने गए थे हम। तो वहाँ पे एक झगड़ा चल रहा था कि भाई साहब कोई गाड़ी ठुकी हुई है और कॉम्पनसेशन मांग रहे। तो ये गाड़ी जो है तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पुणे रोड में है, तो वो बोल रहा है कि नहीं हम इसको नहीं देखेंगे, पुलिस वाला बोल रहा है हम इसको नहीं देखेंगे, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, गाड़ी भले ही मुंबई की है लेकिन ठुकी है आपके पुणे में, तो उन लोग देखेंगे। तो जुरिस्डिक्शन को लेकर भाई लोग काफ़ी कॉन्शियस है, हम नहीं हैंडल करेंगे इसको, भले ही गाड़ी यहाँ की है लेकिन आपको सारा प्रोसीजर वहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, ऐसा आप बोल रहे थे, मैंने सुना, ठीक है। तो जुरिस्डिक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ऐसे मामलों को कैसे निपटाए कि भाई साहब किसी के साथ फ्रॉड हो गया है और वो बंदा लोकेटेड है कहीं पे होगा भाई साहब बिहार में कहीं पे, ठीक है, ओके। सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स भाई साहब। What makes India a federal country? We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constitution units, ठीक है। तो जितने भी फेडरेशंस आपके बने हैं होल्डिंग टुगेदर से, मतलब ये सारे होल्डिंग, तो सारे में बांट नहीं देते हैं पावर ये, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फेडरेशंस दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कौन कौन से हैं भाई साहब, स्टेट, ठीक है, और आपका यूनियन गवर्नमेंट। Thus, all states in the Indian Union do not have identical powers. Some states enjoy a special status. ठीक है, अभी तो खैर ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है, किसी भी स्टेट को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल रहा है, जैसे अभी ये ख़त्म हो चुका है, अभी तो आर्टिकल 370, ठीक है, ओके। मैनी प्रोविजंस, सो दिस इज़ नो लॉन्गर एप्लीकेबल। ये कुछ उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए थे, अभी दिस इज़ टर्मिनेटेड, नाउ इट इज़ नो लॉन्गर देयर, ठीक है। There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. There are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing state. तो बहुत छोटे छोटे ऐसे एरियाज हैं, ठीक है, बहुत छोटे एरियाज हैं ये, इनको इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि देखो स्टेट अगर हम बना देंगे तो स्टेट असेंबली भी बनानी पड़ेगी, है ना, फिर भाई साहब उतने उम्मीदवारों का चयन भी करना पड़ेगा, ऐसा इतना बड़ा स्टेट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं इंडिया में which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states. तो जितने भी existing states हैं उनके साथ हम merge भी नहीं कर सकते। तो इस दिक्कत को हमने कैसे तो ये सारे देखोगे चंडीगढ़, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज, ना ही ये स्टेट हैं और ना ही भाई साहब कोई डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो ना ही ये खुद स्टेट हैं और ना ही किसी स्टेट का पार्ट हैं,
ठीक है। सो दीज आर नोन एज यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो चंडीगढ़ हो गया भाई साहब आपका, देन वी हैव लक्षद्वीप, ठीक है, देन वी हैव दिल्ली, ऑल दीज आर यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। सो दीज एरियाज आर नोन एज यूनियन टेरिटरीज। ना ही ये खुद एक स्टेट हैं और ना ही किसी स्टेट का हिस्सा हैं, ठीक है। तो दिल्ली इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द स्टेट्स विच आर नेबरिंग। हरियाणा का भी पार्ट नहीं है, उत्तर प्रदेश का भी पार्ट नहीं है, और ना ही राजस्थान का पार्ट है, और ना ही भाई साहब उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। दिल्ली इज एन इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी, ठीक है। These territories do not have the powers of a state, ठीक है। The central government has special powers in running these areas. तो central government का भाई साहब एक special power है इनको चलाने के लिए, ठीक है, in running these areas which are also known as union territories. The sharing of powers between the union government and the state government is the basic structure of the constitution. तो यहाँ पे फेडरेशन के तहत शेयरिंग ऑफ पावर्स हुआ है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट, और ये हमारे फेडरेशन का या कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया। इट इज नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग एग्रीमेंट। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट भाई साहब ये चेंज नहीं कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने पड़ेंगे तब जाकर ये चेंज हो सकता है, ठीक है। सो वी वुड नीड एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच मीन्स दैट बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैव टू अग्री, plus the Supreme Court also has to agree, only then an amendment can be passed, ठीक है। Okay, any change to this has to be first passed by, जैसे मैंने आपको बोला, both the houses of the parliament। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों भी इसको अप्रूव करेंगे और पास करेंगे with at least 2/3 majority, ठीक है, 2/3 majority से। then it has to be rectified by the legislatures of at least half of the total states, ठीक है। कम से कम ratified मतलब पास होना चाहिए half of the states। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures। उसके बाद जाकर वो लॉ बनता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो ताबड़तोड़ हुए हैं, जैसे साइबर क्राइम रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो ताबड़तोड़ हुए हैं, क्योंकि वो तो थे नहीं पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अमेंडमेंट नहीं, इनको इंक्लूड किया गया है। कुछ नए लॉज आए हैं जो साइबर फ्रॉड्स को या साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए बनाए गए हैं। ऑब्वियसली जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब इनका प्रोविजन नहीं था। हमारा सोसाइटी और स्ट्रक्चर इवॉल्व होता जा रहा है, बहुत सारे नए नए तरीके के फ्रॉड्स होते जा रहे हैं, बहुत सारे नए नए तरीके के क्राइम्स होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब इंश्योरेंस नहीं आया था, और इंश्योरेंस था भी तो बहुत स्मॉल लेवल पे था। आजकल लोग भाई साहब इंश्योरेंस पे बहुत बड़ा बड़ा गेम खेल जाते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस पे भाई साहब क्या क्या नहीं हो रहा, लोग अपने आप को मरा हुआ साबित कर देते हैं और इंश्योरेंस मनी क्लेम कर लेते हैं। सो ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो क्या करें, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, ओके। In case of any dispute about the division of powers, the High Court and the Supreme Court can make a decision। कभी भी अगर स्टेट और सेंटर में अगर डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ आर ऑथराइज्ड। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each one of them। तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस, टैक्स लेवी करके इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटाइज्ड टू ईच वन ऑफ देम, ठीक है। पोखरण, द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट, लाइज इन राजस्थान। अभी समझो, पहली बार जो इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्टिंग किया था वो पोखरण में हुआ था। वो एक डेजोलेट एरिया है राजस्थान में जो आबादी से, जनरल आबादी से दूर है, क्योंकि रेडिएशन वगैरह होता है जो बहुत खतरनाक हो सकता है, तो हमको ऐसे एरियाज़ पे इसको करवाना पड़ता है। नाउ सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वाज अपोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स न्यूक्लियर पॉलिसी। अभी समझ लो राजस्थान की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोज कर रही है कि नहीं भाई हम आपके न्यूक्लियर पॉलिसी के खिलाफ हैं। कुड इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंडक्टिंग द न्यूक्लियर टेस्ट? तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो रोक सकती है? क्यों नहीं रोक सकती? सेंट्रल गवर्नमेंट कोई चीज़ नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लेकिन तुम कर तो रहे हो राजस्थान में ना, तुम कर रहे हो मेरे स्टेट में, तुम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हो मेरे स्टेट में, जाओ जाके कहीं और करो, मेरे स्टेट में नहीं होने दूंगा मैं। अगर ऐसा हो गया तो ओके। तो पहली बात तो ये है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी इस यूनियन लिस्ट में हैं। तो डिफेंस इज़ इन यूनियन लिस्ट, और इस पे आप स्टेट होकर इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो कल को अगर भाई साहब आपके राजस्थान से पाकिस्तानी अंदर आएंगे तो मैं आर्म फोर्सेस नहीं भेजूंगा। विल यू नॉट रिलाई ऑन द आर्म फोर्सेस दैट द यूनियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू सप्लाई इन ऑर्डर टू
stop them or fight with them, you will, right? ठीक है. So today you have to give your area of land, you know. और हम अपने देशवासियों से जुड़े हैं तो ऑब्वियसली यूनियन गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप नहीं लेगा कि राजस्थान के लोगों को भाई साहब तकलीफ हो जाए, ठीक है. सो दैट वुड बी देयर, ठीक है. सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वाज अपोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स न्यूक्लियर पॉलिसी, कुड इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट? नो, द आंसर इज नो, ठीक है. सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक्स इन इट्स स्कूल, नए टेक्स्ट बुक्स लाएंगे भाई साहब अपन, बट द यूनियन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक्स. तो स्टाइल और कंटेंट भाई साहब हमको सही नहीं लग रहा है, आपने जिस तरह से नए टेक्स्ट बुक्स लाए, एंटी गवर्नमेंट है या एंटी इंडिया है, ऐसा कुछ है, ठीक है. तो क्या वो ला सकती है भाई साहब? नो, ठीक है. इन दैट केस डज द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट बिफोर दीज टेक्स्ट बुक्स कैन बी लॉन्च्ड? ये सारे आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं और डिस्प्यूट क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है. ओके, सो आपके जितने भी कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंटरवीन and pass an order that the chief ministers will have to obey? क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है. Okay, how is the federalism practiced? The constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. In the federal experiment, if the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clarity, it is not merely because of the clarity laid out constitutional provisions, ठीक है. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of the democratic politics in our country. This ensured that spirit of federalism, ठीक है, स्टेट और नेशन के बीच में भाई साहब, स्टेट और नेशन या यूनियन के बीच में रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सक्सेसफुल हो सकता है. एकदम कोई यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पीछे ही पड़ जाए या कोई स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के हर पॉलिसी को भाई साहब अपोज करे, ऐसा नहीं चलेगा. There has to be a constant mutual understanding between the two forms of government for this federalism to be successful, ठीक है. So desire for, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब जो, let us look at some of the major ways in which this happened. Linguistic states हैं आपके इंडिया में, जितने भी स्टेट्स हैं वो एज अ रिजल्ट ऑफ लिंग्विस्टिक डिविजन्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है. ये लिंग्विस्टिक डिविजन है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज दे हैव बीन डिवाइडेड. सारा डिवीजन आपके लैंग्वेज पे हुआ है, ठीक है. So the creation of linguistic states was the first and major test for democratic politics in our country. If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2006, you will be surprised by the extent of the changes. तो जो changes हुए थे उस टाइम पे, you will be actually surprised by the extent of the change. ठीक है. तो आपका जैसे जम्मू एंड कश्मीर है भाई साहब, ठीक है, ये सारे आपके उस टाइम के थे 1947 में, और ये आपका 2006. तो काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है. लिंग्विस्टिक स्टेट, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, ठीक है. तो आप देखोगे बहुत सारे ओल्ड स्टेट्स इन 1947 द बाउंड्रीज, एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड इन 1947. जैसे देखो यहाँ पे इसका नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो आगे चलकर क्या बना, उत्तर प्रदेश, ठीक है. तो आपके बहुत सारे प्रोविंसेस के, जैसे देखो अभी बिहार और झारखंड हो गया है, पहले सिर्फ बिहार ही था, ठीक है. ओके, देन यू फील यहाँ पे आपको क्या बोला जाता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिसका नाम आगे चल के महाराष्ट्र बना और उसका स्कोप और एरिया भी चेंज हुआ, ठीक है. पहले क्या था भाई साहब, मद्रास प्रेसिडेंसी, जो आगे चल के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में डिवाइड हुआ, ठीक है. सो दैट्स हाउ द थिंग्स हैव. तो ये 1947 का मैप है और ये बेसिकली 2006 का है, ठीक है. अभी के जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको दिखाता हुआ ये मैप है, ठीक है. सो इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स. तो नए स्टेट्स का निर्माण हुआ है, ठीक है. ओके, दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट. तो ये जो आप बोलेंगे कि भाई साहब उस टाइम पे तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी मतलब इतना ही था, अभी इतना क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये एरिया उन लोगों को कवर कर रहा है जो मराठी बोलते हैं, ठीक है. सो क्योंकि हमारा लिंग्विस्टिक डिवीजन है तो ये एरिया उन एरिया को कवर कर रहा है जो मराठी बोलते हैं. दैट्स द रीजन इट हैज़ गॉन इन दिस वे, ठीक है. क्योंकि इसके पहले आपने देखा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाज लाइक दिस, ठीक है. लेकिन जो नया महाराष्ट्र बना है वो इस तरह से इसलिए बना ताकि उस पूरे एरिया को कवर कर पाए जहाँ पे मराठी प्राइमरीली बोली जाती है या उस भाषा का प्राइमरी प्रयोग होता है, ठीक है. ओके, सो दिस वाज डन टू एंश्योर दैट पीपल who spoke the same language lived in the same state. Some states were created not on the basis of language
बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। कुछ स्टेट्स ऐसे भी क्रिएट हुए हैं, ठीक है, जो भाई साहब वे क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी। दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, ठीक है, उत्तराखंड एंड झारखंड, ठीक है। इन जगहों पे भाई साहब एथनिसिटी, कल्चर ये सेम है, ठीक है। हो सकता है बोले जाने वाली भाषा सेम ना हो, लेकिन कल्चर, एथनिसिटी ये सब सेम है, ज्योग्राफी ये सब सेम है। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. कुछ नेशनल लीडर्स का उस टाइम पे मानना था कि भाई साहब अगर हम देश का विभाजन ऐसे करेंगे, कैसे स्टेट्स में, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, तो हमारा देश बढ़ जाएगा। लेकिन ये आगे चलकर अच्छा सिद्ध हुआ, क्योंकि अभी हम देश को अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हैं। एक यूनियन गवर्नमेंट क्या पूरे इंडिया को मैनेज कर पाता था इफेक्टिवली? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज इट्स अ ह्यूज नेशन, ठीक है। तो इसीलिए इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए स्टेट्स का निर्माण जरूरी था। अब इस स्टेट्स को किस कॉन्सेप्ट पे हम निर्माण करेंगे, तो और कोई तरीका नहीं बचता है। लिंग्विस्टिक एक ऐसा चीज़ है, लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है जो प्राइमरीली उभर के आता है, ठीक है। तो इसीलिए पहले सोचा गया था कि फ्रैगमेंट्स में तोड़ देगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम, ठीक है, but the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. It has also made administration easier, ठीक है। A second test for Indian Federation is the language policy. इसीलिए इंडिया का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। India doesn't have a national language. It has a national bird, it has a national animal which is tiger, national bird जैसे भाई साहब आपका पिकक, और नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सारी चीज़ें हैं, बट इट डजेंट हैव अ नेशनल लैंग्वेज। हिंदी इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज डेफिनेटली, बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी में ही कॉरेस्पॉन्डेंस कर सको, बाकी लैंग्वेजेस को भी रिकग्नाइज किया गया, क्योंकि हमारे स्टेट्स का डिवीजन लिंग्विस्टिक है, ठीक है। ओके, सो सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड द ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आप हिंदी में ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ द इंडियंस, ठीक है। सो सिर्फ 40% ऑफ इंडियंस एक्चुअली स्पीक इन हिंदी। देयरफॉर देयर वर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस, क्योंकि अगर हम भाई साहब दूसरे लैंग्वेजेस को रिकग्नाइज ना करें या उनको सेफगार्ड ना करें, ठीक है, या उनको कल्चर ना करें, तो वो डेड आउट हो जाएंगे, ठीक है। सो बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट आर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस? मतलब इन स्टेट्स में आप इनसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ और मुझे कोई एप्लीकेशन किसी सिडको या पुलिस स्टेशन में अगर देना है, तो मैं मराठी में लेटर लिखकर दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं वेस्ट बंगाल में हूँ तो बंगाली में दे सकता हूँ, इंग्लिश में भी दे सकता हूँ डेफिनेटली, ठीक है, हिंदी में भी दे सकता हूँ। सो बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस। दीज लैंग्वेजेस आर रिकग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। A candidate in an examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these languages. ये 21 लैंग्वेजेस का आप बेनिफिट अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स में उठा सकते हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं, whether you want to give the test in Hindi or English or in any of these 21 languages, ठीक है। So the government has to make provisions for the same. आपके लिए provisions बनाना पड़ेंगे, ठीक है। States to have their own official languages. Much of the government work takes place in the official language of the concerned state. ज़्यादा करके जितने भी गवर्नमेंट काम होते हैं तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है, जैसे हमारे लिए ऑफिशियल लैंग्वेज महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा? मराठी, ठीक है। सो इट टेक्स प्लेस इन दैट। ओके, अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ अ कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। जैसे अगर आप देखोगे श्रीलंका में सिन्हला और तमिलियन कम्युनिटी थी, तो सिन्हला कम्युनिटी ने बोला कि भाई साहब हमारा ही लैंग्वेज चलने वाला, तमिलियन लैंग्वेज हम फेवर नहीं करेंगे, सीधा सीधा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, हम हिंदी को प्रेरित कर सकते हैं, हम हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज प्रमोट कर सकते हैं, कोई भी अपने लैंग्वेज को प्रमोट कर सकता है, बट उसको हम फोर्सफुली नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस वाज टू स्टॉप इन 1965. However, many non-Hindi speaking states demanded the use of English to continue.
तो पहले एक डिसीजन लिया गया था कि भाई इंग्लिश को हम ऐसा ऑफिशियल कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्टॉप कर देंगे आफ्टर 1965। लेकिन ऐसे बहुत साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जिन्होंने बोला नहीं यार ये ऐसा ना करो, क्योंकि हम हिंदी में माहिर नहीं हैं और हम हिंदी बोलते भी नहीं हैं, ठीक है। तो अगर हमको कॉरेस्पॉन्ड करना हुआ तो कैसे करेंगे, सो लेट्स कीप इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एज वेल, ठीक है। हम इंग्लिश में कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, ठीक है। तो एक वायलेंट फॉर्म, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। तो आपके दो लैंग्वेज हैं इंडिया में विच आर कंसिडर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। Are we clear on this one, people? ठीक है, Hindi and English are the two official languages. Many critics think that this solution favored the English speaking elite. तो ऐसा लोगों को लगता है कि भाई जबरदस्ती का, देखो ये तो सत्य है कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस आपको इंटरनेशनली है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, बट मे बी दोज आर वेरी डेवलप्ड कंट्रीज टू हैंडल थिंग्स ऑन देयर ओन. वी हैव नॉट रीच्ड दैट स्टेज, सो टिल वी रीच दैट स्टेज मे बी द कॉरेस्पॉन्डेंस इन इंग्लिश हेल्प्स अस. हम किसी अमेरिकन क्लाइंट से या किसी फॉरेन के क्लाइंट से इजीली इंग्लिश में कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं आज की तारीख में, ठीक है। सो इसीलिए इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रख दिया गया है अलॉन्ग विथ हिंदी, ठीक है। बोथ आर प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन बट डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। तो आपका जो यू नो व्हाट इज बेसिकली ये कैथलिक कम्युनिटी, ये जो अंग्रेजी कम्युनिटी है ये दोनों में बटी हुई है, ठीक है। जहाँ तक ये जो क्रिश्चियंस हैं दे आर कैथलिक्स और दे आर प्रोटेस्टेंट्स. ये बेसिकली एक ऐसा सेक्ट है जो मार्टिन लूथर किंग के बाद आया था. लेट्स नॉट गो वेरी डीप इनटू इट, लेकिन यहाँ पे ये बटा हुआ है ये कम्युनिटी. कुछ लोग कैथलिक्स हैं, प्योर कैथलिक्स हैं, और कुछ लोग प्रोटेस्टेंट्स हैं, ठीक है. सो कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स इज बेसिकली समथिंग दैट इज प्रिवेलेंट. प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो भाई साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाई साहब अभी भी हिंदी को प्रमोट कर रही है और करती रहेगी, क्योंकि एक ऑफिशियल लैंग्वेज है. इट इज़ कंसिडर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. ये बहुत फेमस हो गए हैं. हैज़ एनीबडी सीन हिम? खैर, ओके. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on states where people speak a different language. Promotion करना और impose करना दोनों अलग बातें हैं. हम हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं. हिंदी एज अ लैंग्वेज का मतलब वाह व्हाट अ रिच लैंग्वेज, काफ़ी सारी किताबें लिखी गई हैं. ये वो किसी हिंदी कल्चरल नाटक में अगर हम गए या हमने पार्टिसिपेट किया, लेकिन हम हिंदी को अगर बोलेंगे इम्पोज कर देंगे, नहीं भाई साहब हिंदी तुम्हारा मीडियम होना चाहिए, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है. सो प्रमोट करना और इम्पोज करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है. तो प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज. हाउएवर इट कैन प्रमोट द लैंग्वेज, ठीक है. The flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in, ठीक है. तो श्रीलंका में ये दोनों कम्युनिटीज़ में, सिन्हाला और तमिलियन कम्युनिटीज़ में इतना बड़ा विवाद हुआ, जिसके वजह से इतने लोगों की जानें गई, इतने दिनों तक सिविल वॉर चला. तो ये सारा कच हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने वन साइडेड एक ही चीज़ को सपोर्ट किया, सिन्हाला कम्युनिटी को सपोर्ट किया, और तमिलियन कम्युनिटी को कोई सपोर्ट नहीं मिला. तो इस तरीके की क्राइसिस वाली सिचुएशन इंडिया में अराइज ना हो, इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स आर वेरी कॉशियस अबाउट सिंपल स्टेप्स, ठीक है. सेंटर स्टेट रिलेशंस, रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथेंड इन प्रैक्टिस, ठीक है. तो रीस्ट्रक्चरिंग करें अगर हम भाई साहब, रीस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या होता है, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस बार बार रीस्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है. रीस्ट्रक्चर होते हैं मतलब इनको रिवाइज किया जाता है कि क्या कुछ और स्कोप है जहाँ पे दोनों मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, या कहीं पे हम सेंटर को छोड़ देते हैं, कहीं पे हम स्टेट को छोड़ देते हैं. इज देयर अ स्कोप ऑफ चेंजेस, ठीक है, हैज बीन स्ट्रेंथेंड. हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स. देखो लॉ तो अपनी जगह पे है, लेकिन लीडर्स कैसे काम करते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है. लॉ कहने को तो ये है, ठीक है, लेकिन लीडर्स कैसे काम कर रहे हैं, हाउ आर दे बेसिकली पुटिंग द लॉ इनटू प्रैक्टिस, ठीक है. द वे इन विच द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट्स डिटरमिन्स टू अ लार्जर एक्सटेंट how these arrangements for sharing power work in reality.
फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। अभी पहले कैसा था देखो, कांग्रेस ही कांग्रेस थी सब जगह, ठीक है, सेंटर पे भी कांग्रेस था और भाई साहब आपके स्टेट लेवल पे भी कांग्रेस ही था। सो इट वाज बेसिकली अ कांग्रेस रूल्ड थिंग, ठीक है, इट वाज बेसिकली अ कांग्रेस रूल्ड थिंग। दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनमस फेडरल यूनिट्स। सो दे डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनमस फेडरल यूनिट्स, ठीक है। मतलब कैसा है देखो, पहले क्या था, सेंटर पे भी कांग्रेस था और स्टेट्स में भी ज़्यादा करके कांग्रेस था, तो हाई कमांड ने जो बोल दिया वो हो जाएगा, है ना, कोई विवाद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब स्टेट गवर्नमेंट्स चेंज होती गई, सेंटर पे दूसरे गवर्नमेंट्स आते गए, तब भाई साहब विवाद होने लगे, ठीक है। पहले पहले तो स्मूथ ट्रांजिशन था, सेंट्रल लेवल पे भी एक ही पार्टी है, स्टेट लेवल पे भी एक ही पार्टी है, तो कोई विवाद का प्रश्न नहीं उठता है, ठीक है, तो स्मूथ मैनेजमेंट हो जाएगा, कोई प्रोटेस्ट करने वाला नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे हमारे अंदर विभिन्नता आती है, ठीक है, वी आर सीइंग डिफरेंट parties emerging from different states and there is a different party at the central level, so we can consider the concepts or rather the confusion or the conflicts that will be created। ये होना ही होना है और शायद ये अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, शायद ये अच्छा है, क्योंकि अगर देखो सेंटर लेवल पे एक पार्टी है और स्टेट लेवल पे भी सेम पार्टी है, तो इस मतलब यहाँ पे सब कुछ मान ही ले रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट ने शायद आइडेंटिफाई की होगी लेकिन सेंटर ने उसको खारिज कर दिया, तो स्टेट ने भी खारिज कर दिया। लेकिन अगर कोई डिफरेंट पार्टी होगी तो शायद उस पर काम हो, ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ दीज थिंग्स। ओके, वी विल कीप इट टिल हियर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर